Hello students, let's start the chapter coordination compounds. So what are the coordination compounds? Coordination compounds are basically compounds of metals and ligands. Ligands. They are highly insoluble in water, and because they are formed by the coordination bond, so they are known as coordination compounds. So coordination compound and some important terms used in the coordination chemistry. So coordination compounds are those molecular additional compound in which a central metal atom or ion is permanently attached to certain atom or group of atoms called ligands, and ligands are capable to donating at least a pair of electrons to the central metal atom and to get attached by the coordinate bond. Okay, that is called the coordination compound. For example, it is an coordination compound K4FeCN का whole 6. If you hydrolyze it, then it gives 4K plus and FeCN whole 6 4 minus ion. Two types, different type of ion it will give. Due to complex structure, it gives negative ion in form of this. Okay. So there are the chemistry of coordination compound studied with the brilliant work of Alfred Werner in 1892. This is why Werner is regarded as the father of coordination chemistry. So what is the difference between double salt and coordination compounds? Both you can study here. So double salt. So double salts are those molecular or additional compound which exist in solid state but dissociate into their constituent ion when dissolved in water. तो ऐसे सॉल्ट्स जो मतलब सिंपली ब्रेक होकर के अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस को दे दें, उनको हम डबल साल्ट बोलते हैं. इनका एग्जांपल है मोर साल्ट FeSO4 NH4 का होल टॉइज SO4.6H2O. अगर इसको आप हीट करोगे या तो मतलब इनको अगर आप मिक्स करोगे तो क्या करेंगे, ये आप एक डबल साल्ट दे देगा. बट अगर इसको फर्दर क्या करोगे, ब्रेक करेगा तो आयरन, अमोनिया, सल्फेट और वाटर में ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ये ब्रेक हो जाएगा. इसको हम बोलते हैं डबल साल्ट. इसका अदर एग्जाम्पल है पोटास एलम. ठीक है, तो उसमें भी सेम कंडीशन होगी. नेक्स्ट होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज आर एडिशनल कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन. ये अपने आइडेंटिटी को क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में रिटेन करते हैं. ये मतलब जो है जिससे बने होते हैं वो आयन से प्रोवाइड नहीं करते हैं. सो इसका एग्जाम्पल अभी है पोटेशियम फेरोसाइनाइड. तो इसका अभी हमने पीछे दिखाया किस तरीके से ये इसका फॉर्मेशन हो रहा है. ये बना आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. अगर इसको आप ब्रेक करोगे तो ये दो डिफरेंट यूनिट्स देगा, ना कि मतलब जो है सारे आयंस को ये ब्रेक कर देगा. इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. ओके, अदर एग्जाम्पल इसके गिवन है. सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. सबसे पहला है सेंट्रल मेटल एटम और आयन. सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या होता है, बेसिकली जो भी मेटल्स यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, दे आर कॉल्ड सेंट्रल एटम बिकॉज दे हैव एम्प्टी d orbital, so they have the capacity to accept lone pair of electrons, so they are present in the center and called central metal atom. For example, in this case K4FeCN6, in this Fe is a central atom. Second, the ligands. The molecular or ionic species which get directly attached to the central atom or ion during the formation of complex is called ligand. For example, इसमें जो CN group है, it is called ligand because it get directly attached to the central atom Fe2 plus ion during the formation of complex. Okay, so it is called ligand. नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स आयन. सो जो प्रोडक्ट फॉर्मेट होकर के आ जाता है वो कॉम्प्लेक्स आयन कहलाता है आपका. जैसे AgNH3 का होल टॉइज, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं इनको, और एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच कंटेन देयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन स्क्वायर होल ब्रैकेट आर नोन एज देयर कॉम्प्लेक्स आयंस. फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनिक स्फीयर. द स्क्वायर ब्रैकेट विच इज यूज्ड इन दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ये कहलाता है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर. फिर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, तो स्फेरिकल अरेंजमेंट मीन्स अगर हम इसको स्ट्रक्चर को अगर इस तरीके से अगर इसके स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, 6 CN लगेंगे इसके साथ में, ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्या कहलाता है, इसका जो ओपन स्ट्रक्चर है या स्ट्रक्चर आता है, दैट इज कॉल्ड द पॉलीहेड्रॉन. फिर कैटायनिक या एनायनिक या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये दो तरीके के होते हैं. व्हेन एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज इन देयर स्क्वायर ब्रैकेट, देन इट इज कॉल्ड कैटायनिक, एंड व्हेन नेगेटिव देन इट इज कॉल्ड एनायनिक. फॉर एग्जांपल, कैटायनिक में FeH2 का होल 6 3+, इट इज एन कैटायनिक complex compound, or for anionic, for example FeCN का whole 6 4-, it is an anionic complex compound. After that, coordination number.
So in the complex compounds, the number of ligands which are attached to the central atom are known as the coordination number. For example, अगर हम बात करें यहाँ पे ही बात कर लें FeH2O का होल 6 3+, यहाँ पे लिगेंड्स कितने हैं H2O, इनका नंबर कितना है 6, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो भी कितना हो जाएगा 6. तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज बेसिकली द नंबर ऑफ लिगेंड्स विच आर प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. After that, charge number or complex signs. So charge number, oxidation number क्या होता है? So when the positive charge, which is positive charge present on the central atom, for example in this Fe पे जो भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा +2 या +3, दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ऑक्सीडेशन नंबर हाउ कैन इट कैलकुलेटेड, तो 11th में आपने पढ़ा है, जिसका आपको निकालना है उसका आप क्या करेंगे x मान करके और उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हैं. ठीक है, जिस मेटल का आपको निकालना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल की बात, तो इफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन दिस कॉम्प्लेक्स इज x, तो अगर हम x रख ले, CO का हमारा 0 होता है और निकल जो है x हुआ, CO का 0, उसका नंबर 4 है, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितना है 0, मीन्स निकल में कितना हुआ ऑक्सीडेशन नंबर उसका कितना आ जाएगा 0. तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो. अब सेकेंड कंडीशन होती है होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिसमें एक ही टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट हो, जैसे FeCN का होल 6 है NH3. हेप्टोलिप्टिक में क्या होता है कि जब एक से अलग कई तरीके के लिगेंड्स प्रेजेंट हो, जो CO NH3 का होल 4 एंड Cl2, यहाँ दो तरीके के लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, सो दे आर कॉल्ड हेट्रोलिप्टिक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स. तो लिगेंड्स को क्लासिफाई करें न्यूट्रल लिगेंड्स, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, केवल लोन पेयर होता है, फॉर एग्जांपल वाटर, अमोनिया एंड कार्बोनिक कंपाउंड. नेक्स्ट एनायनिक लिगेंड, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे F-, Cl-, Cn-, ये हमारे एनायनिक लिगेंड्स कहलाते हैं. एंड कैटायनिक लिगेंड्स, जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, NO+ आयन या NH4+, दीज आर कॉल्ड कैटायनिक लिगेंड्स. नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम. सो अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है मोनोडेंटेड, दो तो बाइडेंटेड. ठीक है, या पॉलीडेंटेड में बहुत सारे हो जाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे वही दिया गया है. अब जैसे ये यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड के एग्जांपल्स हैं, केवल एक पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं. डाइडेंटेड के एग्जांपल्स यहाँ पे ये गिवन है, ये क्या कर सकते हैं, दो पेयर हमको दे सकते हैं, मतलब जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, जिसमें ऑक्सिलेट है, ये हमारे कहलाते हैं डाइडेंटेड या बाइडेंटेड, इनको हम बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर क्या आता है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. हमेशा एक नंबर में क्वेश्चन ये आता है कि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन रहेगा, आपको उसका नोमेनक्लेचर करना होगा, नाम लिखना होगा IPSC. तो क्या उसके कुछ रूल्स हैं, उनको हम देखेंगे. सबसे पहले ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयंस. ठीक है, तो क्या होगा आयंस को नेम करने का, इन द आयनिक कॉम्प्लेक्सेस द पॉजिटिव इज नेम्ड फर्स्ट एंड द नेगेटिव बाद में. फिर द एनायन इज स्टार्टेड विद द स्मॉल लेटर एंड कॉम्प्लेक्स आयन इज रिटन द सिंगल वर्ड. ठीक है, स्मॉल लेटर से लिखा जाता है स्मॉल, और मतलब जो है कैटायन को पहले लिखा जाएगा, एनायन को बाद में लिखा जाएगा, और यहाँ पे नोमेनक्लेचर लिखते समय मतलब बीच में कोई गैप नहीं दिया जाता है, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन नंबर में लिखा जाएगा. ठीक है, अब लिगेंड का अगर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या आता है, जैसे न्यूट्रल लिगेंड्स आर नेम्ड है, जैसे CO को तो कार्बोनिल और थायोक्रोनिल नाइट्रोसिल ये ऐसे लिया जाता है. नेगेटिव लिगेंड्स के आगे O लगा देते हैं सफिक्स से, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इस तरीके से. एंड पॉजिटिव के लिए क्या लगाते हैं, EM लगाते हैं, जैसे NO+ नाइट्रोसोनियम, NH2 हाइड्रोजीनियम, NO2+ नाइट्रोनियम, ये सफिक्स यूज़ करते हैं पॉजिटिव लिगेंड्स में के लिए जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं. फिर मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ द एम्बिडेंट लिगेंड्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे वो देखो दो तरीके, कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो दो तरीके से मतलब बॉन्डिंग कर सकते हैं, उनको हम एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं. जैसे CN क्या होता है, CN कार्बन से भी मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है सेंट्रल मेटल को, और N से भी दे सकता है, तो इट इज नोन एज द बाइडेंटेड लिगेंड्स. ठीक है, फिर पॉलीडेंटेड इस तरीके से आते रहेंगे. फिर ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड्स की अगर बात करें, तो यहाँ पे भी आपको क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को आपको याद रखना पड़ेगा. मान लो अगर ब्रोमो एंड क्लोरो आता है, तो पहले ब्रोमो को लिखोगे, आफ्टर दैट क्लोरो को लिखोगे. अब फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रिज के अगर कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, तो ब्रिज लिगेंड्स इंडिकेट बाय एडिंग द प्रीफिक्स ये म्यूस, इसको डिनोट करते हैं बिफोर द नेम ऑफ द लिगेंड. कोई भी नेम लिखोगे तो उसके पहले म्यू लगाते हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका नोमेनक्लेचर किया गया है
तो यहाँ पे ये क्या आएगा, इसका नाम क्या है यहाँ पे, टेट्रा एक्वा आयरन। ठीक है, चार चार हाइड्रोजन है, फिर आयरन है, टेट्रा एक्वा। टेट्रा मीन्स 4 वाटर के लिए एक्वा। ठीक है, फिर आयरन सिंपली, और फिर उसके बाद आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आएगी, अगर निकालोगे एक्स के हिसाब से तो +3 आएगी। ठीक है, तो उसकी 3 लिख दी। फिर ब्रिज आ गया है तो उसके लिए म्यू लगाएंगे, फिर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो 2 हाइड्रोक्सी, फिर टेट्रा एक्वेरियम, फिर इधर के साइड पहले इधर का किया, फिर ब्रिज का किया, फिर इधर पे आ गए। ठीक है, तो पहले टेट्रा एक्वा आयरन, फिर उसकी ऑक्सीडेशन से 3rd, फिर म्यू ब्रिज के लिए, फिर इधर वाले करेंगे, फिर आएगा डाईहाइड्रोक्सी आया, फिर आ गया टेट्रा एक्वा और आयरन, और इसकी फिर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, और फाइनली क्या आता है, सल्फेट। तो ये इसका क्या हुआ, IUPAC नेम। तो ये सीक्वेंस में ब्रिज वाले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम करते हैं। ठीक है, अब इसमें कैटाइनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स ये है, तो सेंट्रल आइटम Ag+ ऑक्सीडेशन +1 है, तो नेम सिल्वर फर्स्ट लिखा देगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा नोमेनक्लेचर में उसके किससे डिनोट करेंगे, रोमन नंबर से करेंगे। ठीक है, ठीक। और इसी तरीके से एनाइनिक में अगर हम देखें तो क्या होगा कि व्हेन द कॉम्प्लेक्स एनाइनिक देन द सेंट्रल आइटम आयन एंड्स विद द सफिक्स 8 लगाते हैं। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे हम, जैसे फॉर एग्जांपल द सेंट्रल आइटम प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स K4Fe दिस नेम से फेरेट, आयरन के लिए फेरेट। मतलब कैटाइनिक वाले में जैसे अगर आयरन प्रेजेंट है तो उसको सिंपली आयरन लिखा जाएगा, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स एनाइनिक फॉर्म में है तो उसके लिए आयरन ना लिख करके फेरेट, सिल्वर ना लिख करके मतलब अर्जेंटनेट, ऐसे करके हम उसको लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे नोमेनक्लेचर है कैटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस के। तो देखो यहाँ पे CuNH3 का होल फॉर 2+, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2, तो इसको कैसे लिखोगे, पहले लिगेंड लिखा जाता है, तो टेट्रा 4 अमीन है तो टेट्रा अमीन, फिर क्योंकि पॉजिटिव वाला है तो कॉपर को कॉपर ही लिखेंगे, अगर निगेटिव होता तो क्यूपरेट लिखते। ठीक है, तो टेट्रा अमीन कॉपर सेकेंड आयन। इसी तरीके से हेक्सा एक्वा आयरन 3rd आयन। फिर इसी तरीके से डाइक्लोराइडो 20, यहाँ पे 2 बार है तो 20 लगाएंगे, 3 बार होगा तो 30 लगाएंगे। इथाइल डाइअमीन कोबाल्ट सेकेंड कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पॉजिटिव कैटायन के नोमेनक्लेचर के लिए है। फिर एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 6 साइन है तो हेक्सा साइनो। अब यहाँ देखो निगेटिव है तो आयरन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेरेट ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर 3rd आयन। फिर इसी तरीके से टेट्राआइडो मर्क्यूरेट 2nd आयन, फिर टेट्राक्लोराइडो एक्यूरेट 3rd आयन, इस तरीके से। फिर आता है नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में एक नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, ओके बस इतना ही रखते हैं।